out of pain at night. Mother can stay on her parents but cannot imagine to separate my children. Mother has enormous pain when the gift of children and but cannot see the tear in the eyes of children. If mother dies first, father marries another woman for her sport. And if father dies first, mother remains widow and lives all life alone and remembering her husband. Will you sing this for a while? Yes, you may. Every effort of our father is making for all betterment. Every sweat is inspired for our comfort. If we birth your spoken about father has such a reality, I cannot deny and never deny your statement. I understand your emotions. I do have respect to my father and love my father. But I can convince you the importance of mother is ever higher than the father. Once a man came from Muhammad and said, Ya Rasulullah who has the greatest claim on me with regard to service and treatment? The Prophet Muhammad replied, Your mother, and again your mother, and once again your mother. After her, the claim of your father. My dear friend, what I have mentioned authentic hadith, take my Bukhari Sharif. Tell me. Would you hold your hand, please? Yes. I give up and stop my debate here. I cannot utter a single word any further. Now that you have mentioned the Prophet Muhammad, now you have mentioned the hadith of Prophet Muhammad, peace be upon him. I'm convinced wholeheartedly that the importance of mother or father is 3 times better. And I think for convincing me, and I declare that you have won the debate. Well, my dear friend, it is not a matter of defeat or victorious. In fact, I would say the one who admits the fact and the one who admits the truth is a wise person. You kept your emotions aside and showed the respect of Prophet Muhammad. And I am sure in the eyes of Allah you are the victorious person. And today we honor having with this victorious person and also my sister. Now I will call here my co-host Huzaif Farooq for topic. Please give a big hand for my co-host Huzaif Farooq. मोहतरम मुकाम प्रिंसिपल साहिब, दीगर साहिबान, मेहमानान गिरामी, मेरे प्यारे भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने एक तकरीर पेश करना चाहता हूँ। वो है इस्लाम में लिबास के आदाब। मौजूद सामीन, लिबास ऐसा पहनिए जो शर्म व हया, गैरत व शराफत, जिस्म की सतरपोशी और हिफाजत के तकाज़ों को पूरा करे। अल्लाह ताला ने अपनी इस नेमत का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सवातिकुम वरीशा। ए औलाद आदम, हमने तुम पर लिबास नाजिल किया ताकि इस लिबास से आप अपने काबिल शर्म हिस्सों को ढांके, ताकि ये लिबास आपके लिए जीनत व जमाल का जरिया बने, ताकि इस लिबास से आप अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें। मौजूद सामीन, लिबास का मकसद जीनत व आराइश और मौसमी असरात से हिफाजत भी है, लेकिन अव्वलीन मकसद काबिल शर्म हिस्सों की सतरपोशी है। अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में शर्म व हया पैदा फरमाई है। यही वजह है कि जब हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत का लिबास फाकीरा उतरा हुआ लाया गया, तो वो जन्नत के दरख्तों के पत्तों से अपने जिस्म को ढांपने लगे। मौजूद सामीन, इसलिए लिबास का मकसद सबसे मुकद्दम समझे और ऐसा लिबास मुंतखब कीजिए जो आपके लिए सबसे बेहतर हो, जो आपकी शर्मगाहों की हिफाजत करो। और इस लिबास को ऐसे पहनिए कि दूसरे को ना लगे कि लिबास पहनने वाला कोई अजूबा या खिलौना है, दूसरे को ना लगे लिबास पहनने वाला शरीयत में दूर होता जा रहा है। ऐसा लिबास पहनिए जो शरीयत की नजरों में परहेजगारों का लिबास हो। बेहतरीन लिबास तकवे का लिबास है। तकवे के लिबास से मुराद बातनी पाकीज़गी भी है और ज़ाहिरी परहेजगारी भी। यानी ऐसा लिबास पहनिए जो शरीयत के नजरों में परहेजगारों का लिबास हो, जिससे किब्र व गुरूर का इजहार ना हो, जो न मर्दों के लिए औरतों से मुशाबत का जरिया हो और न औरतों के लिए मर्दों से मुशाबत का जरिया हो। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ऐसा लिबास पहनिए जिसे देख कर लगे लिबास पहनने वाला कोई खुदा तरस और भला इंसान है। मर्द हजरात, लिबास पहनते वक्त शरीयत के हुदूदों पर नजर रखे और औरतें शरीयत के हुदूदों पर नजर रखे।
अपना पाजामा और लुंगी वगैरह को टखनों से ऊंचा रखिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में वो नाकाम और नामुराद लोग हैं जो अपना पाजामा और लुंगी वगैरह को अपने टखनों से नीचे रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, 3 किस्म के लोग वो हैं जिनके साथ अल्लाह ताला ना तो क़यामत के दिन बात करेगा, ना उनकी तरफ नजर देगा, ना उनको साफ व पाक करके जन्नत में दाखिल करेगा। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई तो फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 3 किस्म के लोग कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहला वो शख्स जो गुरूर और तकब्बुर में अपना तोहमन टखनों से नीचे लटकाता है। दूसरा वो शख्स जो किसी शख्स का एहसान जुटाता है। तीसरा वो शख्स जो झूठी कसमों के सहारे अपने तिजारत को चमकाना चाहता है। उबैद बिन खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना एक वाक़ा बयान फरमाते हुए बोल रहा है कि मैं एक बार मदीने मुनव्वरा में जा रहा था, लेकिन मेरा तहमन अपने टखनों से नीचे था। मुझे पीछे से आवाज आई, ए उबैद, ए उबैद, ए उबैद, अपना तहमत ऊपर उठा लो, इससे आदमी बातनी और जाहिरी नजासतों से महफूज रहता है। उबैद बिन खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो ही मैंने पीछे की तरफ नजर दी की तो मेरी नजर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो एक मामूली सी चादर है, भला इसमें क्या गुरूर और तकब्बुर हो सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ए उबैद, क्या आपके लिए मेरी इत्तिबा जरूरी नहीं? उबैद बिन खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो ही मैंने अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुने तो मेरी नजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहमन पर पड़ी, तो मैंने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहमन निसफ पढ़ली तक ऊंचा था। औरतें ऐसे बारीक कपड़े ना पहने जिनमें से इनका बदन झलके, ना ऐसा चुस्त लिबास पहने जिनमें से इनका बदन नजर आए। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, वो औरतें भी जहन्नमी है जो ऐसे कपड़े पहनकर सड़कों से घूमती है, लड़कों को अपने आप की तरफ अट्रैक्ट करती है और खुद दूसरों पर रेशती है। वो न कभी जन्नत में जाएगी और न कभी जन्नत की खुशबू पाएगी। लेकिन मौजूद सामीन किराम, मेहमानान गिरामी, आज अगर हम अपने समाज की तरफ नजर देंगे तो आजकल की लड़की अपने बाप को आगे खाना लाती है तो किस तरह का लिबास पहन कर लाती है। आजकल की लड़की कॉलेज जाती है तो किस तरह का लिबास पहन कर जाती है। आजकल की लड़की घर से यूनिवर्सिटी जाती है तो किस तरह के लिबास पहन के जाती है। आजकल की लड़की बाजारों से घूमती है। जी हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, औरतों को जायज नहीं कि वो रास्तों से घूमे, वो बाजारों से घूमे, लेकिन जिस वक्त उनको मजबूरी होगी वो घर से निकल सकती है, लेकिन पर्दे में। मौजूद सामीन, मैं ये बताना चाहता हूँ, अपनी बहनों से गुजारिश करना चाहता हूँ, जिस नबी ने आपको इतना मकाम दिया, आपको इतना इज्जत दिया, आज आप उस नबी से दूर होते जा रहे हो। आज आप अपने अंदर वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर रहे हो। यही वजह है आजकल कश्मीर वेस्टर्न कंट्री का गुलाम बन चुका है। मौजूद सामीन, अल्लाह ताला का कुरान में इरशाद, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, औरतें दुपट्टा ओढ़े और दुपट्टा से अपने सीना और बाल बांध कर रखे। मौजूद सामीन, लेकिन आजकल तो देखो, आजकल का फैशन तो देखो, आजकल 4 गिराह की पट्टी को गले का हार बनाकर लड़कियां सर पे दुपट्टा रखने के बजाय गले पे रखती है, कंधों पे रखती है। मौजूद सामीन, आखिर पे अपना इस तकरीर का इख्तिताम करना चाहता हूँ। जिस वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के लिए लिया गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे औरतों के जो बाजू होते हैं वो सीने से पीछे लिए गए थे, उनके सीनों से सलाइयां लगाई गई थी। तो उसने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए जिब्राइल, मन हाउलाई, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये क्या है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए अल्लाह के रसूल, कौम के सरदार, ये वो औरतें हैं जो दुनिया में लड़कों को अपने आप की तरफ रिचाती थी, जो दुनिया में ऐसे कपड़े पहनकर निकालती थी। बुजुर्ग इंसानों को इनकी तरफ देखकर शर्म महसूस होती थी, लड़के इनकी तरफ देखकर शर्म महसूस होती थी। ये वही औरतें हैं जिनको अल्लाह ताला ने ऐसा अंजाम दिया है, ऐसे अजाब का अंजाम दिया है। आखिर पे हम अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे, ए अल्लाह हमें वैसा कपड़ा पहनने की तौफीक दे जो आपकी राह में परहेजगारों का लिबास हो, जो किब्र व गुरूर से बचाने का लिबास हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। Respected audience, my co-host enthralls us with his emotional speech that circulated around the theme of parda and importance of parda in Islam. Now, I'm going to invite here Navida Usmania Naushad, who will enlighten her topic.
Prophet, peace be upon him, said, "Give respect and regard to your children and decorate them with the best of manners of Buddha." Islam is a religion in which the rights of peace souls are granted. We do it as taking us to honor our parents, to abide with them, to follow their orders, to respect their wrongs. Islam has given parents an honorable status. Allah Ta'ala said, "Your Lord has decorated them, you worship not but him and do good to parents." Surah Al-Isra, number 23. The Prophet, peace be upon him, Allah said, "Paradise lies at the feet of your mother." Jabir ibn Abdullah narrated that the Messenger of Allah, peace be upon him, said, "You and your wealth belong to your father." मुझको छाँव में रखकर खुद जलता रहा धूप में, मुझको छाँव में रखकर खुद जलता रहा धूप में, मैंने एक शख्स देखा है बाप के रूप में. Do the parents have all the rights? Poor parents, don't parents have obligations towards their children? Rights and duties are sets of a kind. The rights of parents are duties of children, and duties of parents are the rights of children. Therefore, those who attend parenthood have great responsibilities on their shoulders. The status of parents is because of performing these duties that the parents have been endowed with the exalted status. It's later to mention here that a man once came to Umar ibn al-Khattab for complaining against his son's disobedience to him. Umar summoned the boy and spoke of his disobedience and negligence to his father and about his rights. The boy said, "O Amir al-Mu'minin, Prince of believers, has not a child right towards his father?" Certainly replied Umar. The boy asked, "What are the Amir al-Mu'minin?" Umar replied that he should choose his mother, give him a good name and teach him the book, the Quran. The boy said, "O Amir al-Mu'minin, my father did nothing of this. My mother was Maggie. He gave me the name of Fulitan and he did not teach me a single letter of the Quran." Turning to the father, Umar said, "You come to me to complain about the disobedience of your son. You have failed in your duty to him before he has failed in his duty to you." If the parents discharge the responsibilities properly, they will be rewarded in this world and hereafter. Responsibilities of parents for caring and upbringing their children are mentioned in the Quran as well as in Hadith. Allah Ta'ala says, "Oh, you have believed and protect yourselves and your family from fire, whose fuel is people and stones." The family is the best and first seminary, and parents are the first teacher for a child. Parents should provide them with the battle of this environmental, showing Allah's creation like sun, moon and rain. Parents should build and stool faith in the extent of Allah and spoil on the soft heart of a child. Jabir ibn Samah reported that Messenger of Allah, peace be upon him, said, "The teaching of good manner by a man to his son is better for him than to give a son in charity." The Prophet Muhammad, peace be upon him, said, "No father can give his child anything better than good manners." The parents should master their children in such a way that they become successful both in this world and hereafter. Although today's parents think more about aware of their spiritual life. At last but not least, I will propose to say that childhood lost his conflicted houses and conflicted societies. For those who lost their childhood, I want to read an Urdu poem as concluding remarks. चलो फिर ढूंढ लेते हैं उसी नादान बचपन को, उन्हीं मासूम खुशियों को, उन्हीं रंगीन लम्हों को, जहाँ तुमको पता न था, जहाँ तुमकी समझ न थी, जहाँ बस मुस्कुराहट थी, बहारे ही बहारे थे, कि जब सावन बरसता था तो इस कागज की कश्ती को बनाना और फिर डुबा देना बहुत अच्छा सा लगता था, और इस दुनिया का हर चेहरा बहुत सच्चा सा लगता था। चलो फिर ढूंढ लेते हैं इसी नादान बचपन को, उन्हीं मासूम खुशियों को, उन्हीं रंगीन लम्हों को। Thanks for showing kindness, care and patience. Thanks, that's all I want to do. Appreciate your parents. You never know what sacrifices they went through for you, was the main theme of the Usmania Naushad's talk. इसके बाद मैं दावत देना चाहता हूँ एक होनहार तालिब इल्म को जो 2016 में इस स्कूल से फारिग हुआ है और आज दरसगाह मोहम्मदिया बुदरू के उस्ताद है। वो है सल्फी मुकीद भट्ट। सल्फी मुकीद भट्ट, प्लीज कम ऑन स्टेज। Assalamu
सबसे पहले तो उस हस्ती का शुक्र बनता है जिसने सल्फिया ऐसे बुनियादी प्रोग्राम को इस शानदार तकरीब को मुनक्कद करने की तौफीक अता फरमाई। इसके बाद मैं इस स्कूल के जिम्मेदारान का काफ़ी मशहूर हूँ, बल्कि हम सब काफ़ी मशहूर हैं कि उन्होंने मुझ नाचीज़ के साथ साथ आप बाइज़्ज़त हज़रात को इस खुसूसी प्रोग्राम में शमूलियत करने की दावत दी। अब रही मेरी बात, तो मेरा नाम है अब्दुल रकीब भट्ट। मैं यारीपुरा के पड़ोसी गांव बदरू से बिलोंग करता हूँ। बदरू के सल्फिया स्कूल से फारिग होकर मैंने इस स्कूल में अपना एडमिशन लिया और उस वक्त मैं क्लास 6 में पढ़ा। मुझे याद है जब इस स्कूल में मेरा पहला ही दिन था तो मेरे भाई ने मोहम्मद अकीब भट्ट, जो इस वक्त यहाँ बहस के उस्ताद काम कर रहे थे, उन्होंने प्रायर इंचार्ज से कहा कि कल मुकीर की बारी है, कल मुकीर की जिम्मेदारी है नात पढ़ने की, और पहले दिन मुझे जिम्मेदारी दी। अगले दिन मैं आया, अपनी जिम्मेदारी को अंजाम दिया, नात पेश की, और फिर क्या था, जो भी प्रायर इंचार्ज आए उन्हें जब मर्जी होती थी, उनका जब जी चाहता था वो मुझे मॉर्निंग असेंबली पर बुलाते थे नात पढ़ने के लिए, क्योंकि वो भी जानते थे और मैं भी जानता था कि मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज भी एक नज़्म की तैयारी की है, अगर स्कूल के जिम्मेदार इजाजत दे तो मैं वो पेश करूँगा। जज़ाकल्लाह। मेरा ये मानना है कि जब भी आप लोगों के सामने आए, जब भी आपको लोगों के सामने आने का मौका मिले, तो आप इम्प्रेस करने की गर्ज से ना उठे, बल्कि एक्सप्रेस करने की गर्ज से उठे। आपके टॉपिक, आपके मनाजात, आपके नात में जो मैसेज छुपी है वो आपको एक्सप्रेस करनी है, लोगों को वो मैसेज समझ आनी चाहिए। इसीलिए जो नज़्म मैंने आज सिलेक्ट की है वो कश्मीरी में है और कश्मीर के रिलेट ही है, और अब मैं कश्मीरी में बात करने जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू का अंग्रेजी यह नज़्म सुनाओ प्रेमी से सुरूह सुना मुलाकात ओरिजिन स्मिथ सजाद हुसैन सजा अथ नज़्म मस अहम चीज़ ये अथ नज़्म मसली कंपैरिजन करूं से प्रेमवन कशीर इंसान के दोस्त और एजु कशीर इंसान कुछ प्रिय कशीर समाज के दोस्त और एजु कशीर समाज कुछ। ये नज़्म इशर साख समझेंगे, बल्कि आत्मस्म साख अल्फाज इस्तेमाल करके इब्रत के सामने चाहे सुलभ ऐसे चाहे बुढ़ो से बस शरत जिस आठ जिद्दान चुनी और इन नज़्म शुरू कर सकते हैं। घटी मज खामोश सरी मतमचस नसफरा घटी मज खामोश सरी मतमचस नसफरा जंती आमत तजियातस रूहल हज आख बड़ जमा जंती आमत तजियातस रूहल हज आख बड़ जमा। और ये लोग जमात आए, ये लोग तकरीर कर, लोग बयान करो गवर्नमेंट काफी मुझे अदिताम युस ओस ताहिनिश वोत असनिश रूह पाक अदिताम युस ओस ताहिनिश वोत असनिश रूह पाक तनी तप ऐसी आरकत कर कौन कशु
Şeç haber azgıtika Asidi buz yemi sarzamin vich Şeç haber azgıtika Asitami do razi asan Asitami do razi asan Prat kis pant majmai Asitami do razi asan Prat kis pant majmai. When I put two words, it's literate. Is an educated person, knowledgeable, able to follow the book. Elim yudvai kampahan os fitratan asaf dil. Elim yudvai kampahan os fitratan asaf dil. Az chu elim Prat kis nish Az chu elim prat kis nish Dilam chakrit krihin mil Az chu elim prat kis nish Dilam chakrit krihin mil Vati paknuk adab kyaos Zut tukutos pariza Vati paknuk adab kyaos Zut tukutos pariza Tim chiteshimai vatin ant hayazan gau bezaban Tim chiteshimai vatin ant hayazan gau bezaban Bismillah ka rumchu mut mut rani pathan aad thi Bismillah ka rumchu mut mut rani pathan aad thi Tawai nyumut prat garasman Tawai nyumut prat garasman Barkatau yeti rakh satri Tawai nyumut prat garasman Barkatau yeti rakh satri Gati mazhamosh sari Mata vijnas nesfarat Zamti amat taziyadas Ruhan hazak bad jamaat. Salam. MashaAllah, he was the one and the legend of the school. Give her once again big hand for him. Now I am going to invite your group Salfia L. Group Salfia L, please come on the stage. Wait, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What you wish in the
यहाँ पे सुबह से ये प्रोग्राम जो चल रहा है, तो
तो जारी सारी है ये प्रोग्राम इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जो हमारे मेहमान गिरामी हैं, पेरेंट्स हैं बच्चों के, और बाकी दीगर भी ज़ीर अज़ार यहाँ पे तशरीफ रखे हुए हैं। तो प्रोग्राम जारी है। आसार से पता चलता है कि जो हमारे गेस्ट्स हैं, पेरेंट्स हैं, चेहरों से खुशियों के आसार पिपक रहे हैं। इसी तनाज़ुर के मुताबिक एक साहिब ने अपनी खुशी का इजहार यूं किया, 1000 रुपया सल्फिया स्कूल के लिए अपनी तरफ से बतौर नजराना वक़्फ़ किया। वो हमारे सेक्रेटरी मोहतरम है हल्के जमीयत यानीपुरा के मोहतरम गुलाम हसन मलिक साहिब। अल्लाह ताला इनकी इस खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो यहाँ पे हम किसी किस्म का चंदा तो नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन ये तो खुशी का इजहार इनकी तरफ से जो उन्होंने यहाँ पे दिखाया, तो वो भी इस तनाज़ुर से कि जब बच्चों की मेहनत